بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ایم عبداللہ بٹی۔ دنیا بھر میں لیبر ڈے منایا گیا، پاکستان میں بھی لیبر ڈے منایا گیا۔ میں آپ کو اس لیبر ڈے کی جو تاریخ ہے، جو ہسٹوریکل ایفیکٹس ہیں کہ یہ کب مطلب کہ بنایا گیا اور کس وجہ سے یہ بنایا گیا تھا اور کس نے اس کی بنیاد رکھی اور یہ دن کس وجہ سے منایا جاتا ہے اور اس کا جو پس منظر ہے، پوری ایک جو تاریخ ہے وہ اب آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اگلے حصے میں آپ کو ساتھ یہ بتاؤں گا کہ پاکستان میں اس وقت مزدور کے جو حقوق ہیں وہ کیا ہیں، دنیا بھر میں مزدوروں کے حقوق کیا ہیں اور پاکستان میں مزدور کے حقوق کیا ہیں۔ کیا پاکستان میں صرف چھٹی کی حد تک مزدور کے حقوق ہیں یا اس کے ساتھ کچھ واقعی پریکٹیکلی بھی حکومت مزدور کے لیے کچھ کر رہی ہے؟ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مزدور ڈے منایا کب گیا تھا۔ اس کی جو تاریخ ہے وہ تاریخ بڑی ایک بھیانک قسم کی ہے، بڑی ہی انتہائی نازک اور انتہائی مطلب کہ نا خون آلود ہے، یوں کہیں اگر تو بے جا نہیں ہوگا۔ اس کی تاریخ جو ہے یہ 1 مئی 1986 میں امریکہ کے صنعتی شہر شکاگو میں مزدوروں نے اپنے حقوق کے لیے ایک تاریخ کا آغاز کیا تھا۔ جب یہ کیونکہ اس وقت مزدور جو ہے وہ 16 گھنٹے کام کر رہا تھا، تو وہ یہ چاہتے تھے کہ ہمارا جو انہوں نے یہ پھر نعرہ لگایا کہ ہمارے جو ڈیوٹی اور ہیں، جو ہمارے مزدوری کا وقت ہے وہ صرف 8 گھنٹے مقرر کیا جائے۔ اور یہ آواز پھر ایک زور پکڑتی گئی اور اس کی جو ریلی تھی، جو اس کا احتجاج تھا، اس کے اندر اس وقت امریکہ کی 1200 فیکٹریوں کے تقریباً 3.5 لاکھ مزدوروں نے حصہ لیا تھا اور اپنی جو آواز ہے وہ سامراجی اور جو سرمایہ درانہ قوتیں ہیں ان کے سامنے بڑی زوردار گرج دار آواز میں پیش کی تھی۔ پھر اس سلسلے میں جب 1 مئی کو ایک پرامن ہڑتال کا انہوں نے اعلان کیا اور جب یہ ہڑتال کا آغاز ہوا تو اس کے تیسرے دن ہی ان فیکٹریز کے اندر جو پولیس ہے انہوں نے مطلب گھس کے ان لوگوں کے اوپر، پرامن جو نہتے مزدور تھے ان کے اوپر فائرنگ کر دی اور اس فائرنگ کے نتیجے میں 4 مزدور اس وقت ہلاک ہو گئے تھے اور کئی زخمی ہوئے تھے، بہت زیادہ۔ اور اس واقعے کے خلاف جو تحریک تھی پھر یعنی کہ 4 مئی کو ہی پھر اس تحریک کے جو کرتا دھرتا تھے، جو اس کو اون کر رہے تھے، جو لیڈ کر رہے تھے، انہوں نے ایک پرامن احتجاجی جلسے کا اعلان کر دیا۔ پھر اگلے روز ہی پرامن جلسے اور ریلیاں اور ان کا یہ مطلب آغاز ہو گیا، جس کے اوپر پھر پولیس نے جب یہ احتجاج اور جلسوں کا آغاز ہوا تو پولیس نے ایک بار پھر ان کے اوپر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں پھر کئی مزدور اور کئی لوگ جو ہے نا وہ مزدور بیچارے جو وہ ہلاک ہوئے اور پولیس نے گھروں میں چھاپے مارے اور ان کو اٹھایا، گرفتار کیا، ان کے اوپر جعلی مقدمے بنائے اور اس طرح سے کئی مطلب کہ تقریباً 8 کے لگ بھگ مزدوروں کو پھر اس پداش کے اندر سزائے موت بھی دی گئی۔ لیکن مزدور اپنے حقوق کے لیے ڈٹے رہے، انہوں نے اپنی جو آواز تھی، اپنے جو حقوق کی آواز تھی اس کو دبنے نہیں دیا، اس کے لیے انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے اپنے حقوق کی آواز بلند کرتے رہے، یہاں تک کہ پھر جب ایک مزدور نے پھر جب ان کا ایک ساتھی اسی 11 نومبر کو جب 1887 کو ان کو پھانسی دی گئی، جن مزدوروں کو مطلب کہ 8 مزدوروں کو جو پھانسی کا اعلان کیا گیا ان کے لیے، ان کو 11 نومبر 1887 کو ان کو پھانسی کی پھندے پہ پہنچایا گیا۔ لیکن مزدور پھر بھی نہیں رکے، انہوں نے مطلب پھر پولیس بھی ان کے اوپر فائرنگ اور اس طرح کی شیلنگ سے باز نہیں آئی۔ اور اسی سلسلے میں جب ایک مزدور نے جب ایک اپنے بھائی زخمی ہوا تو اس کے جھنڈے کے اوپر اس کا خون لگا کے یہ سرخ جھنڈا لہرایا اس کے خون سے، جس کی وجہ سے اس تحریک کا جو جھنڈا ہے وہ ہمیشہ کے لیے سرخ ہو گیا۔ اور اس تحریک کو بعد میں ریمنڈ لیون نے ایک تجویز پر 1890 میں 1 مئی کو مزدور کے طور پہ منانے کا اعلان کیا، جس کے بعد پھر یہ 1 مئی کو عالمی مزدور کے طور پہ منایا جانے لگا۔ لیکن کچھ عرصے تک امریکہ جو آج بڑی حقوق کی چیمپئن بنتی ہے، جو بہت بڑے بڑے کرتا دھرتا آج بڑے وہ وہاں پہ ہیں، اس وقت امریکہ، کینیڈا، جنوبی افریقہ میں یوم مزدور نہیں منایا گیا، وہاں مزدوروں کو حقوق نہیں دیے گئے۔ لیکن پھر کچھ عرصے کے بعد پھر ان کو یہ اپنے حقوق دیے گئے۔ اور اسی طرح اگر پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان میں سب سے پہلے جو 1972 کو پاکستان میں یوم مزدور منایا گیا، وہ بھی ذوالفقار علی بھٹو نے سرکاری سطح پہ اس کی اناؤنسمنٹ کی۔ تب سے ہر سال اب یوم
तातील यानी कि पूरे मुल्क के अंदर और दुनिया के अंदर मनाया जाता है। और इसी तरह अब शिकागो के शुहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए इस दिन रैलियाँ और जलसे जुलूस, सेमिनार और इन सारी चीज़ों का एहतमाम किया जाता है। मेहनत कशों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के तहत मज़दूरों को जो दरपेश मसाइल हैं, इनके तदारुक के लिए भी कोशिश की जाती है। और पाकिस्तान में तकरीबन 6 करोड़ मज़दूर हैं जिनके हकूक़ सिर्फ़ और सिर्फ सरकारी फ़ाइलों तक महदूद हैं। इनके लिए कोई प्रैक्टिकली यहाँ नहीं किया जाता। यहाँ सिर्फ आवाज़ें लगाई जाती हैं कि ये मज़दूर हमारे तबके हैं, ये है, और इस तरह का मतलब उनके लिए बहुत बड़े बड़े तो ये नारे तो लगाए जाते हैं, लेकिन उनको हकूक़ नहीं दिए जाते। आज भी मज़दूर बेचारा जो है वो 8 घंटे 16 घंटे पाकिस्तान में तकरीबन आज भी मज़दूर बेचारा ड्यूटी कर रहा है। आज भी दुनिया के अंदर यानी कि यौम मज़दूर मनाया गया, लेकिन आज भी बेचारे ऐसे मज़दूर हैं जो ईद वाले दिन भी छुट्टी नहीं कर सकते। ईद वाले दिन भी वो मेहनत मज़दूरी के लिए बेचारे निकलते हैं। और आज जो पाकिस्तान के मुआशी हालात हैं वो सब के सामने हैं। जिस तरह से ज़बोहाली का शिकार है पाकिस्तान, उसके मसाइल सब के सामने हैं। लेकिन हमारी जितनी भी हुकूमतें आई हैं, ना इनके लिए ओल्ड एज बेनिफिट, ना पेंशन, ना इनको सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी भी इनको मुहैया नहीं की जाती। और इवन जो सबसे एक अलमिया और ख़तरनाक और अफसोसनाक इंतहाई शर्मनाक बात है वो ये है कि हुकूमत इनके लिए जो अनाउंसमेंट करती है उजरत की, यानी कि हर साल सिर्फ अनाउंसमेंट की हद तक तो होता है कि 25,000 हुकूमत मुहैया यानी कि उजरत मुकर्रर करती है, लेकिन आज भी बेचारे मजदूर को 25,000 वो मंथली नहीं कमा पाता। इसका वो तकरीबन 15-20 हज़ार रुपये महाना कमाता है बेचारा। और इस वक्त जो महंगाई है वो आलमी यानी कि एक आसमानों को छू रही है, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत किसी किस्म का सिर्फ एक छुट्टी की हद तक तो वो अनाउंसमेंट कर देती है, बड़ी चैंपियन बन जाती है। और इस दिन सारी जो पॉलिटिकली लीडर है वो आ जाते हैं कि हम मजदूर के साथ हैं, हम मजदूर के लिए ये करेंगे, हमारी जमात मजदूर की है, ये है, इवन मजदूर के लिए ये है जमात उनके सलाम करना, आप उनके साथ हाथ मिलाना गवारा नहीं करते। ये है आपकी जमहूरियत, ये है मजदूर के साथ आपकी इज़हार यकजहती। आज भी मजदूर बेचारा रोडों के ऊपर खज्जल ख्वार हो रहा है। आज मजदूर बेचारा 2 वक्त की रोटी के लिए वो आज भी लाइनों में लगा हुआ है। आज वो आटे की थैली के लिए आपने जान के नजराने पेश कर रहा है। ये है मजदूर के हकूक। आप हुकूमतें बताएं कौम को कि आपने मजदूर के लिए क्या किया है। कोई एक बना दें कि आपने मजदूर को सिक्योरिटी दी हो, तो उसकी को पेंशन के एक बेचारा जिंदगी के आखिरी अयाम तक वो करता है जॉब के, आपने घर का पेट पाले, आपने यानी कि आपने बीमारी की हालत में इवन वो बेचारा यानी कि मजदूरी के लिए निकलता है, उसके लिए खाने के 2 वक्त की रोटी नहीं, नवाला नहीं है, और ये सारे चैंपियन बने हुए हैं। ये है मजदूर की आपकी ये बड़े वो यानी जिसके चैंपियन और उसके मतलब के हकूक अलम बरदार बनते हैं आप। मतलब ज़रा आपने गिरबान में सोचें कि क्या आज ये जितने आज लीडरान चाहे वो रैलियाँ निकालें हैं किसी भी पार्टी से, कि ज़रा आपने गिरबान में सोचें कि 20,000 में आपका गुजारा होता है। आप तो 20,000 एक वक्त में एक नवाला खाते हैं 20,000 का। गरीब पूरा महीना 20,000 रुपए के लिए खज्जल ख्वार होता है। धूप में, गर्मी, सर्दी, बारिश, किसी किस्म का उसको नहीं होता। उसके लिए तो सिर्फ ये होता है कि किसी तरह 2 वक्त का लुकमा उसको मिल जाए। इवन वो उस बेचारे के लिए तो ईद के दिन छुट्टी नहीं होती। आज छुट्टी कौन मना रहा है? जो 85 लाख, आज मैं एक जगह सुन रहा था कि जो गैस का एमडी है, गैस यानी कि महकमे का जो इस वक्त पाकिस्तान का एमडी है, वो 85 लाख रुपए महाना तनख्वाह ले रहा है। वो छुट्टी करते हैं, ऐसे लोग छुट्टी करते हैं। गरीब का जाके देखो जो गैस के इवन पाइप लगा रहा है, जो उसकी टचिंग कर रहा है, आपस में कनेक्शन करता है, जो वहाँ पे वो उसको मतलब पाइपों को कनेक्ट कर रहा होता है, उसकी हालत जाके देखें। गर्मी की हालत में जब वो एक मतलब गड्ढे के अंदर जाके उसको कनेक्ट कर रहा होता है पाइप को, तो उस वक्त वो जो लगाता है यानी कि जिस पिन के साथ जो वो मतलब धात यूज़ करता है, उसका ज़रा गैस जाके देखें उसकी हालत क्या होती है। उसकी जो यानी गर्मी के अंदर उसकी जो हालत है ना, वो सब के सामने होती है, क्योंकि उस बेचारे ने अपनी प्रोटेक्शन करनी होती है। आपने किस तरह से इन लोगों को क्या आपने एक मतलब मजदूर के लिए कोई एक आप पाकिस्तान की हुकूमत जितनी भी आई हैं, मैं किसी एक हुकूमत को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा, मैं पूरी हुकूमतों को कह रहा हूँ, कोई एक आप बता दें जो आपने मजदूर के लिए प्रैक्टिकली कोई काम किया हो। सिवाय नारों की हद तक तो सारे कहते हैं कि मैं आसमान से तारे ला के इनके कदमों में रखूंगा, आसमान से चांद ले आऊँगा, सूरज को ला के इनके मजदूरों के कदमों में रखूंगा। सिर्फ नारे तो हैं,
आज ये कुछ लोग कहते हैं कि हम भुट्टो के बड़े वारिस हैं, इसमें कोई शक नहीं। भुट्टो को खराज तहसीन वो एक क्रेडिट जाता है कि उसने कम अज़ कम छुट्टी की अनाउंसमेंट की, लेकिन आज ज़रा बताएं ना वो किधर गया रोटी कपड़ा मकान जो भुट्टो का नारा था, किधर गया जो आज मरियम नवाज शरीफ साहिबा कहती थी कि जब भी नवाज शरीफ की हुकूमत आई है गरीब उससे मुस्तफ़ीद। ज़रा बताए ना गरीब क्या मुस्तफ़ीद हो, या कोई एक उसका प्रोजेक्ट बता के कि नवाज शरीफ ने मतलब कि मज़दूरों के लिए ये किया हो। इमरान खान है तो वो ज़रा कौम को बता देना कि मैं मज़दूर के लिए पेंशन इतनी की है, या मैंने जो उजरत उसकी लागू की थी वो उसको मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही। मरियम आज इतनी यानी कि मैं अब क्या हुआ तो खतून है, अब मैं क्या बोलूँ। वो बोल रही थी कि 2 रुपए की रोटी, यार को खुदा का खौफ करें कि आपको मतलब ये बोलते हुए आपका दिल नहीं कंप, उन मजदूरों के जख्मों पे उल्टा आप नमक छिड़क रही हैं कि 2 रुपए की रोटी थी। ये किस दौर की बात कर रहे हैं? ये कायदे आज़म के दौर में तो 2 रुपए की रोटी मिलती होगी मोहतरमा, आज 25 से 30 रुपए की है। इसका कौन जिम्मेदार है? क्या ये मजदूर तबका है जो अपनी मेहनत कश है, जो आज आप ये लाखों रुपए के ब्रांडेड चीज़ें और V8 पता नहीं कौन सी करोड़ों की गाड़ियों में बैठते हैं और ये अवानों में कौन पहुंचाता है? ये गरीब के वोट से आप आते हैं, ये गरीब के खून पसीने की कमाई से आप ये अय्याशी करते हैं। आपको फिर भी मतलब कुछ तो खुदा का खौफ करें। जितने भी लीडरान हैं, जितने भी हुक्मरान हैं, जितने भी अवामी नुमाइंदे हैं, ये ज़रा देखेंगे जो गरीब है, जो मजदूर है, उसकी हालत क्या है, उसका कुछ तो ज़बो हाली का ख्याल करें। उसके निमक पे जो हर साल हम बड़े चैंपियन हो के मतलब एक दिन मना लिया यौम मजदूर, चलो जी छुट्टी, उस दिन हम नारे भी लगाएंगे, हम ट्वीट भी करेंगे और हम हुकूमत के बहुत बड़े खैर ख्वाह बन गए मजदूरों के और बड़े चैंपियन। ऐसे नहीं होगा, प्रैक्टिकली आपको काम करना होगा। हमारे दीन जो कहता है एक मजदूर की तबके की जो हालत है ना उसको ऊपर ले जाने के लिए जो हमारा दीन कहता है उसके मुताबिक आप प्रैक्टिकल दुनिया में दीन मनाए जा रहे हैं ना, उनका वो बनता भी है। उन्होंने आपने मजदूरों के लिए जो ऐलान किए वो प्रैक्टिकली किए हैं। उन्होंने सिर्फ खोखले नारे नहीं लगाए, उन्होंने आपकी तरह भाषण नहीं दिए, उन्होंने प्रैक्टिकली काम किया। और फिर उनको मालूम है ना वहां पे छुट्टी बनती है। आपको तो छुट्टी का नाम लेते हुए आपका तो दिल कांप जाना चाहिए था, आपके दिल गुर्दे हिल जाने चाहिए थे जब आप सिर्फ ये अनाउंसमेंट करते हैं कि यौम मजदूर मनाया जाएगा। आज यहाँ रैली निकाली जाएगी, आज यहाँ ये खिताब किया जाएगा, आज ये ट्वीट की जाएगी। ये नहीं सिर्फ होगा, प्रैक्टिकली काम करें मजदूर गरीब के लिए। उसको सिर्फ बाकी छोड़ें, उसको सिर्फ 2 वक्त की रोटी दे दें। आप तो ने तो उसके 2 वक्त की रोटी छीन ली। आप उसको क्या दे रहे हो? आप उसको ये दे रहे हो आटा जिसके अंदर मतलब रेत मिली हुई है। 2 वक्त जो वो आटा खाएगा वो सीधा हॉस्पिटल जाएगा। ये है आपकी मजदूर की यानी कि तरजीह। उसको तो आपने 2 वक्त की रोटी नहीं मुयस्सर, आप बाकी छोड़े नारे, उसको 2 वक्त की रोटी मुयस्सर कर दें तो ये भी बड़ी गनीमत होगी। पाकिस्तानियों, ये है आपके मजदूर। ये इधर OBI जो बना हुआ है ओल्ड एज, इसने क्या काम किया है? इसने मजदूर के लिए कोई बेनिफिट क्रिएट किया है? लेकिन उस बिल्डिंग के अंदर जो बड़ी ओहदे पे बैठा होगा उसकी लाखों करोड़ों रुपए मंथली कमा रहा होगा, लेकिन मजदूर गरीब क्या है? वो आज भी 2 वक्त के नवाले के लिए तरस रहा है। वो आज भी रोडों के ऊपर वो ना बारिश देख रहा है ना कुछ देख रहा है, आज भी रोडों के ऊपर खज्जल ख्वार हो रहा है। ये है आपकी पसंद यानी कि मजदूर तरजीह। ये है उसकी मतलब आपने उजरत मुकर्रर की हुई, ये उसकी तरक्की का आपका पैमाना है। ये आपने उसको जॉब सिक्योरिटी नहीं है। वो आज जो कोयले की कानों में लोग बेचारे यानी कि गर्मी की वजह से या कभी वो कोयला की कान बैठ जाती है, उनके लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं है। लोग यानी कि जानों के नजराने बेचारे पेश कर देते हैं। और इधर ये सिर्फ नारे, खोखले वादे, जलसे जलूस और करके सेमिनार, चलो जी हम बड़े जमहूरियत के चैंपियन बन गए, हम बहुत बड़े मजदूर के खैर ख्वाह। ऐसे नहीं होगा। पाकिस्तानियों, आप अपने हकूक़ के लिए खुद आवाज़ बुलंद करो। आपको भी ये अमेरिका तर्ज पे अपने हकूक़ मनवाने के लिए इकट्ठा होना होगा, तब आपको ये देंगे हमारे हुक्मरान। वरना ये तो आप इनके लिए तो अमीर से अमीर तर होते जाएंगे, आप गरीब से गरीब तर होते जाएंगे अगर आप अपने हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद नहीं करोगे। तो आखिर में प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।